नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्नातक परिषद के लिए अनिमेश मारुद्रप्पा अनंदावाड़े भाल्की के वकील ने अपना नामांकन दाखिल। अगर देवराज गौड़ा के पास 100 करोड़ की रिश्वत का कोई सबूत है तो उन्हें लोकायुक्त के पास जाना चाहिए, डीके शिव कुमार ने। कर्नाटका बीजेपी प्रमुख विजेंद्र ने अश्लील वीडियो मामले में सीबीआई जांच की मांग। फरार सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पहला गिरफ्तारी वारंट जारी। बेंगलुरु में बस हवा में रुकी, यात्री बाल बाल बचे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। उत्तर पूर्व स्नातक परिषद के लिए अनिमेश मारुद्रप्पा अनंदावाड़े भाल्की के वकील ने अपना नामांकन आजाद उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि जो भी आज तक चुनाव में जीतकर एमएलसी बने वह अपने मतदाताओं के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಾನು ಅನಿಮೇಶ್ ಮಾರುದ್ರಪ್ಪ ಆನಂದವಾಡಿ ವಕೀಲರು ಭಾಲ್ಕಿ. ನಾನು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನದಂತ ನಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಸಲಹೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂಬದೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾರು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪದವೀಧರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಎಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪದವೀಧರ ಏನಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಎಷ್ಟದ. ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಏನಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೇನಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಂತ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಗೆದ್ದೋದಂಥ ಚುನಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಂತೂ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ನೀಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನದಂತ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ವಕೀಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾಗ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೇನದ ನಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಹಮತ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪದವೀಧರ ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇನಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಳಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा नेता देवराज गौड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी को कथित तौर पर हसन के अश्लील वीडियो वाले पेनड्राइव के प्रसार के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में फंसाने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। उन्होंने कहा अगर देवराज गौड़ा के पास कोई सबूत है तो उन्हें लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। वह मानसिक रूप से अस्थिर होगा और मेरी सहानुभूति उसके साथ है। मीडिया इतना जागरूक और बुद्धिमान है कि वह अनाज से भूसी को अलग कर सके। शिव कुमार ने कहा जो कुछ भी कहा गया है उसकी रिपोर्ट करना सही नहीं है। देवराज गौड़ा के साथ अपनी मुलाकात के सवाल पर शिव कुमार ने कहा कि सैकड़ों लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि वह डिप्टी सीएम है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मुझसे मिलने आते हैं और लोगों की पृष्ठभूमि और उनके इरादों का आकलन करना असंभव है। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है या कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए मैं इन चीजों को लेकर चिंतित नहीं हूँ। वे प्रचार के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कथित अश्लील वीडियो मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने की मांग की। बीवाई विजेंद्र ने कहा कि इस मामले के संबंध में कई प्रमुख नाम सुनने में आ रहे हैं, इसीलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और ऐसा होना एसआईटी के लिए संभव नहीं है, लेकिन बल्कि यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। मैं राज्य सरकार से यही अनुरोध कर रहा हूं। इससे पहले दिन में
पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने मामले के संबंध में अपने पोते और हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हर संभव कानूनी कार्यवाही करने का आग्रह किया। हालांकि पूर्व पीएम ने आरोप लगाया कि उनके बेटे और होले नरसिंहपुर विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ मामला साजिशन रचा गया था। एचडी रेवन्ना को कथित अपहरण के एक मामले में 4 मई को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 14 मई को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शनिवार को पहला गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो अपने खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामलों के बाद से फरार है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रज्वल के खिलाफ मामलों की जांच के लिए स्थापित विशेष जांच दल एसआईटी के एक आवेदन के बाद 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसीएमएम कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया था। हालांकि एसआईटी के सूत्रों ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग करते हुए अदालत के समक्ष दायर आवेदन में उल्लेखित आधारों का खुलासा करने से इनकार कर दिया और पूछा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोपों के अलावा और क्या आधार चाहिए। एसआईटी के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे 3 मामलों का सामना कर रहे सांसद के खिलाफ वारंट को उनके पासपोर्ट को रद्द करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है, जो उन्हें भारत लौटने के लिए मजबूर करेगा। केएसआरटीसी बस के यात्री बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि बस हवा में लटक रही थी, जिसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया और फ्लाईओवर के मध्य भाग से टकराकर फ्लाईओवर के दूसरी तरफ कूद गई। बस ड्राइवर और कंडक्टर सहित 15 यात्रियों को लेकर सोमवारपेट से तुमकुर होते हुए बैंगलोर जा रही थी। यह दुर्घटना कई लोगों के लिए घातक हो सकती थी, क्योंकि यदि निकटवर्ती फ्लाईओवर न होता तो बस 40 फीट नीचे गिर जाती। हादसे में बस चालक और परिचालक समेत 8 यात्री घायल हो गए हैं। यह घटना शनिवार सुबह बैंगलोर तुमकुर राजमार्ग पर मदनायकनहल्ली फ्लाईओवर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे ड्राइवर ने हाईवे पर दाहिनी ओर मोड़ लिया और नियंत्रण खो बैठा, जिससे डिवाइडर से टकरा गई। लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जो घटनास्थल पर पहुंची। घायल यात्रियों और कर्मचारियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से 2 को गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के कारण फ्लाईओवर पर करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। नीलमंगला ट्रैफिक पुलिस ने केएसआरटीसी और बस ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी
279 और आईपीसी 337 के तहत मामला दर्ज किया है। काले बादलों और बारिश के खतरे ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के उत्साही प्रशंसकों को नहीं रोका, जो घरेलू टीम और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे शनिवार को बड़ी संख्या में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जमा हुए थे, जहां बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने स्टेडियम को भर दिया। वहीं अन्य जो टिकट लेने से चूक गए, वे स्टेडियम के बाहर खड़े होकर अपने फोन पर मैच देख रहे थे। कॉलेज के दोस्तों के एक समूह दोनों टीमों के समर्थकों ने एक दूसरे को चिढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आईपीएल टीमों के प्रति उनकी वफादारी अलग अलग है, लेकिन वे पिछले 10 वर्षों से प्रतिद्वंदिता का आनंद ले रहे हैं। समर्थकों के बीच भावनाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने इस संभावना पर चर्चा की है कि यह सीएसके के थलापा एमएस धोनी का आखिरी और शायद आखिरी मैच होगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में साइबर अपराध पुलिस ने आरक्षण पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया की एक संपादित वीडियो क्लिप साझा करने के लिए एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को गिरफ्तार किया है। उपयोगकर्ता भीकू महात्रे @ मुंबई चाडॉन ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में एक ट्वीट भी पोस्ट किया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला किया गया। उनके कथित ट्वीट को लेकर उन्हें शनिवार को गोवा से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी 29 अप्रैल को बेंगलुरु निवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता जे सर्वनन द्वारा साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद हुई साइबर क्राइम पुलिस ने एक्स यूजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया गया। पीएस विश्वविद्यालय में छात्रों की आत्महत्या के विरोध में लगभग 100 लोग फ्रीडम पार्क में एकत्र हुए। 9 महीने 4 आत्महत्याएं, एक विश्वविद्यालय क्यों? बदमाशों को गिरफ्तार करे, अधिकारियों द्वारा रैगिंग आधिकारिक रैगिंग है। छात्र उत्पीड़न को आपराधिक बनाएं, पीईएस को न कहे, अब छात्र की मौत नहीं होगी। ये प्रदर्शनकारियों के पास मौजूद तख्तियों पर लिखे कुछ संदेश मात्र थे। पिछले 9 महीने में पीईएस विश्वविद्यालय में 4 आत्महत्याओं की सूचना मिली है, एक गिरिनगर परिसर से और 3 अन्य अकेले इलेक्ट्रॉनिक सिटी परिसर से। इस वर्ष सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएसएलसी परीक्षा के वास्तविक
परिणामों ने न केवल राज्य को स्तब्ध कर दिया है बल्कि इन सभी वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की पवित्रता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साबित किया है कि सीखने का स्तर और शिक्षण की खराब है। इस वर्ष दर्ज किए गए एसएसएलसी के वास्तविक परिणाम 54% से भी कम है और उत्तीर्ण प्रतिशत 73.7 तक बढ़ाने के लिए कर्नाटक स्कूल परीक्षण और मूल्यांकन बोर्ड ने एक सामान्यकरण प्रक्रिया का पालन किया है और अनुग्रह अंक देने के लिए अर्हक अंक 35 से कम कर दिए हैं। 20 अंक ग्रेस मार्क के रूप में दिए गए। इस वर्ष खराब नतीजों की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए विभाग को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। ग्रेस मार्क्स दिए जाने से नाराज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों की खिंचाई की और अगले साल से ग्रेस मार्क खत्म करने की घोषणा की। बेंगलुरु से कोची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान को शनिवार 18 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि उसके एक इंजन में आग लग गई। उड़ान भरने के तुरंत बाद आग लगने की सूचना मिलने पर चालक दल के सदस्यों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचित किया। एयर इंडिया ने कहा क्योंकि उड़ान भरने के बाद दाहिने इंजन से आग की लपेटें निकलती देखी गई, इसीलिए बेंगलुरु कोची उड़ान को वापस लौटना पड़ा और एहतियातन शनिवार रात बेंगलुरु में लैंडिंग करनी पड़ी। ग्राउंड सेवाओं ने भी आग की लपेटों को सूचना दी, जिसके परिणाम स्वरूप विमान को खाली कराया गया। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता 9IX1132 में चालक दल के 6 सदस्य और 189 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह KIA से रात 10:49 पर केरल के कोची के लिए रवाना हुआ, लेकिन एक इंजन में आग लगने की सूचना के बाद इसे रात 11:12 पर हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि पूर्ण आपातकाल रात 11:03 से 11:49 तक घोषित किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्नातक परिषद के लिए अनिमेश मारुद्रप्पा अनंदावाड़े भाल्की के वकील ने अपना नामांकन दाखिल किया। अगर देवराज गौड़ा के पास 100 करोड़ की रिश्वत का कोई सबूत है तो उन्हें लोकायुक्त के पास जाना चाहिए, डीके शिव कुमार ने। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख विजेंद्र ने अश्लील वीडियो मामले में सीबीआई जांच की मांग। फरार सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पहला गिरफ्तारी वारंट जारी। बेंगलुरु में बस हवा में रुकी, यात्री बाल बाल बचे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।